قال الله تعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى في موضع آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت ہر قسم کی تعریف و توصیفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، میری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت اور ہر ایک ریاضت اور ہر قسم کی بندگی کا تنہا اور اکیلا مستحق ہے، حقدار ہے. ہماری ہر حمد و ثنا صرف اسی ذات واحد کے لیے، وہ تنہا اکیلا اس کا مستحق ہے، وہی معبود برحق ہے جس نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے آسائش زندگی کی ساری چیزیں ہمیں فراہم کی اور ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنے مقصد حقیقی کو پہچاننے کی توفیق دی کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. اس کی توفیق بھی ہمیں دی کہ ہم اسے پہچانیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے، کیا ہے ہمارا مقصد حقیقی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ اس آیت سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی دنیا، اس میں موجود ساری رہائشیں، ساری آسائشیں، عیش و عشرت کی ساری رنگینیاں جو کچھ ہیں، یہ صرف دکھلاوے کی چیز ہیں. اصل جو مقصد ہے، ہمیں یہاں رہ کر اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے مقصد کو نہ بھولیں، اس کی عبادت سے غافل نہ ہوں. اور درود و سلام ہو ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہم تک پہنچایا، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہمیں بتایا. اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے مقصد حقیقی کو نہ بھولیں، آخرت سے غافل نہ ہوں، بلکہ دنیا کی رنگینی میں رہ کر بھی رب کی عبادت کریں. آج موقع ہے، فراغت ہے، زندگی ہے، رب کی طرف سے مہلت ہے. ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس زندگی میں اپنے اعمال کو نیکیوں سے بھرنا ہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب وہ دستک دے دے. ہماری نافرمانیوں کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف نیکی کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ ہم سے انسان ہونے کے ناطے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، لیکن نافرمانیوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے. اس مہلت کا مطلب یہ نہیں کہ رب نے ہم کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا وہ مامون ہیں، ان کو ایک دم سکون ہے، ان کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب نہیں آئے گا؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا عَذَابًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب کسی بھی وقت آ جائے گا، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے، قیلولہ کر رہے ہوں گے، اپنی خواب گاہوں میں اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہوں گے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بے خوف ہیں وہ لوگ؟ آگے اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں کہتا ہے أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اگر بے خوف ہو تو جان جاؤ، سن لو کہ بے خوف صرف وہی ہوتا ہے جو خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے، جس کو نقصان اٹھانا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو، اس کی دی ہوئی ڈھیل کو غافل ہو جاتا ہے اس سے، اور اپنے
दिनों रात को यूं ही बगैर नेक अमाल के गुजारता रहता है। तो अगर लाख बुराइयों के बावजूद, नाफरमानियों के बावजूद अगर अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है तो हमें इस मोहलत को गनीमत समझना चाहिए और तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए, अपने गुनाहों का एहतिसाब करते हुए अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहना चाहिए। लेकिन हमारा हाल इसके बरअक्स है। हम हर दिन आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी नित नए खुराफात बिदात में मुब्तला है। कोई ना कोई फंक्शन हो, कोई ना कोई महफिल, किसी ना किसी में हम मुलव्विस रहते हैं और रब को भूल जाते हैं। अभी करीब में चंद ही दिनों में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से के एतबार से नए साल का आगाज होने वाला है। आज 28 दिसंबर है। अभी चंद ही दिन में 2-3 दिन के वक्फे के बाद साल 2023 का इख्तिताम हो जाएगा और साल 2024 का आगाज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए सेहत व आफियत, अमन व सलामती, खुशगवार और नेकियों वाली ज़िंदगी इसमें नसीब करे, आमीन। बहरहाल ये अंग्रेजी साल के एतबार से नया साल होता है। ये ईसाइयों का तरतीब दिया हुआ निज़ाम तारीख है। ये मुसलमानों के लिए नया साल नहीं है। ये जो साल है ईसवी साल, ये ईसाइयों की ईजाद किया हुआ है। ये इन लोगों ने इसको तरतीब दिया है। जो कैलेंडर है ये ईसाइयों का बनाया हुआ है, ये मुसलमानों का नहीं है। मुसलमानों का तो सन हिजरी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से जुड़ा हुआ है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना गए थे हिजरत करके, तब से सने हिजरी का आगाज हुआ। और हमारा इस्लामी नया साल किस महीने से शुरू होता है? मुहर्रमुल हराम से, जो कि 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है। सबसे पहला है हुर्मत वाला महीना। बहरहाल अंग्रेजी साल किसके ईजाद किया हुआ है? ईसाइयों की ईजाद किया हुआ है। इनके अकीदे के मुताबिक 25 दिसंबर की तारीख जो गुजरी, उनका अकीदा क्या होता है कि ये दिन कौन सा दिन है? क्रिसमस डे इसको नाम से मौसूम करते हैं। नौज़ बिल्ला उनका ये अकीदा है कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, जिसको वो लोग क्रिसमस डे कहते हैं और मेरी क्रिसमस कह के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। नौज़ बिल्ला जिसका माना क्या होता है? नौज़ बिल्ला कि अल्लाह ने बेटा जना, मुबारक हो अल्लाह ने बेटा जना। उस जात के लिए जिस जात ने अपना तारुफ कुरान के अंदर सूरह इखलास के अंदर इन अल्फाज में किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अल्लाह की जात तन्हा है, अकेली है। अल्लाहुस समद, बेनियाज है वो। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो खुद जना गया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं। अपने तमाम काम में, अपने तमाम तसर्रुफात में वो तन्हा है, अकेला है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तारुफ बता दिया कि मेरी जात इन औलाद से पाक है। इन चीजों की जरूरत इंसानों को पड़ती है, जिस औलाद के लिए असाए पीरी का नाम लगाया जाता है। असाए पीरी, औलाद को असाए पीरी भी कहा जाता है, यानी बुढ़ापे की लाठी। इंसान जब बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है, ज़ईफ हो जाता है, उसकी तवानाई, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, तो वो मजबूर होता है, वो सहारा लेता है अपनी औलाद को। हर इंसान की तमन्ना होती है कि मेरी एक औलाद हो जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, मेरा आसरा बने। तो ये इन चीजों की जरूरत इंसानों को पड़ती है। जो हम हैं कमजोर है, हम कमजोर मखलूक हैं, हम मोहताज हैं इन सहारों के। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे सहारों से बेनियाज है, अल्लाह को इन सहारों की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल क्रिसमस की वजह से जो त्योहार वो लोग मनाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्ला अल्लाह का बेटा कहते हैं, क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला से इनको पैदा किया था। अल्लाह ताला ने इंसानों की तख्लीक के 4 तरीके बताए हैं। 4 तरीकों के जरिए अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तरह से हुई थी? बगैर बाप के जरिए हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया था। मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर आके जिब्रील अमीन के जरिए उनके गिरेबान में फूंक मारी, वो फूंक जाके हमल में ठहर गई, उससे वो वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक बन गई। उसके बाद वो दुनिया में पैदा हुई। तो नौज़ बिल्ला चूंकि कोई एक मर्द नहीं था, इसलिए नौज़ बिल्ला वो लोग कहते हैं कि अल्लाह उनके बाप। ये अकीदा है।
तो बहरहाल क्रिसमस के बाद से ये जो चंद दिन 1 जनवरी तक के बचते हैं, ये पूरा इसी तरह इसी खुशियों के सिलसिले में खत्म होता है। इसी खुशी से वो आखिर तक यही कैफियत नए साल के पहले दिन तक रहती है। क्रिसमस के बाद जो बाकी दिन गुजरते हैं, 31 दिसंबर की रात 12 बजे से इस जश्न का आगाज होता है। 31 दिसंबर की रात हर कोई तैयार रहता है, घड़ी पे सबकी नजर रहती है, अपने सारे प्रोग्राम को सेट करके अपने सारे मंसूबों को तरतीब देकर लोग 12 बजने का इंतजार करते हैं। जो ही घड़ी में 12 बजते हैं उसी तरह से वो लोग जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। देखो, दुनिया के तमाम मज़ाहिब कौमों में त्योहार और खुशियां मनाने का कोई ना कोई अलग अलग तरीका है। हर कौम, हर मजहब एक अलग अलग तरीके से अपना त्योहार मनाती है और हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है। कोई अपने बुजुर्ग की याद में, कोई किसी की तरह से कोई त्योहार मनाता है, लेकिन हर त्योहार जो जाता है, रुखसत होता है, वो अपने पीछे एक सबक छोड़ता है। जैसे हमारा त्योहार रमजान समझ लो मिसाल के तौर पर, जब 30 रोजा गुजर के जाता है, रमजान रुखसत होता है, तो वो हमें क्या सबक देता है कि जिस तरह की इबादत और रियाजत, जिस तरह की मेहनत तुमने इबादत में इस रमजान के महीने में की थी, अब में ये ट्रेनिंग तुमको 30 रोजे में दी गई है, अब इसी तरह की इबादत साल के 11 महीनों में भी तुमको करना है। जिस तरह की इबादत, रोजे, कुरान की तिलावत, अस्कार, तरावी, जिस तरह से इसमें तुमने पाबंदी के साथ अल्लाह की इबादत की है, बाकी के 11 महीनों में भी तुमको ये करना है। रमजान ने एक सबक हमको दिया। ईद उल फित्र आया त्योहार, ईद उल फित्र में ये सबक मिला कि खुशियां बांटना है, अपनी खुशी में गरीबों को भी हमको शरीक करना है, उनका भी हक समझना है। ईद उल अजहा आया, इस त्योहार में अल्लाह ताला ने हमें क्या दर्स दिया कि अपने खाने में, अपने माल में तुम गरीबों का भी हक समझो, उनकी भूख का अल्लाह ने हमें एहसास दिलाया कि तुम्हारे इस खाने में, तुम्हारे इस ज़बीहे में गरीबों का भी हक है, उसमें भी अल्लाह ने हिस्सा लगाया कुर्बानी में। तो गोया बहरहाल एक चीज ये पता चली कि हर त्योहार रुखसत होते साथ हमें एक पैगाम देकर जाता है, एक सबक देकर जाता है। अलगर्ज इस्लाम में तो यही 2 त्योहार है जो है शरई, और इस्लाम ने इसको सादगी से मनाने के लिए कहा है। न इसमें किसी तरह से ढोल, ताशे, पटाखे, कुमकुमे, इस तरह की कोई भी इस्लाम ने गुंजाइश नहीं दी है। इन्हीं सारी खुराफात में से जो आजकल लोग बनाते हैं, उनमें से एक खुराफात यही हैप्पी न्यू ईयर जिसके नाम से मौसूम किया जाता है 31 दिसंबर की रात को और 1 जनवरी के बीच में जो मौका होता है उस रात का, इसको हैप्पी न्यू ईयर के नाम से लोग मौसूम करते हैं। वही मौजू आज मेरा है कि नए साल के जश्न की शरई हैसियत क्या है। ये जो नए साल का जश्न लोग मनाते हैं, इस्लामी शरीयत हमें इस बारे में क्या हुक्म दे रही है। हमारा इस्लाम चूंकि हमें हर मैदान में रहनुमाई कर रहा है, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, हत्ता कि बैतुल खला में जाने का तरीका, वहां पे दुआ पढ़ने का तरीका, छींक आए तो क्या पढ़ना है, जमाई ले रहे हैं तो किस तरह का हाथ रखना है, हर चीज इस्लाम ने हमें कहीं भी मैदान में प्यासा नहीं छोड़ा है, रहनुमाई की। तो इतने बड़े जश्न को मनाया जो जाता है इतने बड़े पैमाने पर, आला पैमाने पर, तो इस्लाम हमारे लिए उसमें क्या कहता है आज इंशाल्लाह हम लोग सुनेंगे। जो ये अंग्रेजी नया साल है, ये पूरे बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान में बड़े आले पैमाने पर मनाया जाता है। बहुत अजीब व गरीब माहौल होता है, तकरीबन अरबों खरबों रुपया जिसकी जैसी हैसियत होती है इस प्रोग्राम में वो लोग खर्च करते हैं। बहुत ज्यादा रकम बर्बादी के हवाले हो जाती है। 12 बजते ही सबसे पहले ढेर सारे पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं। नया साल आतिशबाजी इस तरह से मनाया जाता है, पटाखों को फोड़ते हुए, कि ऐसा हौलनाक मंजर होता है रोड पर देखने का। घर में, गली में, गुजरगाहों पर, घूमने की जगहों पर, हर जगह लोग पटाखे से इस साल की शुरुआत करते हैं, जिसकी वजह से हादसात भी होते हैं। नंबर 2, नया साल हुआ, पटाखे फूटे, केक काट कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है, हैप्पी न्यू ईयर कहा जाता है, टेक्स्ट मैसेजेस किए जाते हैं, कहीं पर जबानी इस तरह से दूसरों को मुबारकबाद दी जाती हैं, और मुख्तलिफ नाइट क्लबों में तफरीह का प्रोग्राम भी रखा जाता है। बाकायदा वहाँ पर डांस वगैरह का भी इंतजाम किया जाता है। उस रात में नाचने वाली एक औरत को करोड़ों की रकम दी जाती, ऐसे ऐसे लाख रुपए वहाँ पर खर्च किए जाते हैं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का जो ईसवी साल है, मुसलमानों का जो साल है ये ईसवी साल से हटकर हिजरी साल है। हमारा भी अपना अरबी कैलेंडर मौजूद है जो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, जिलहिज पर ख़त्म होता है, लेकिन हमारे इस्लामी इस नए साल पर भी किसी तरह का जश्न मनाने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है कि ठीक है ये ईसवी साल है हमको नहीं मनाना है, हमारा हिजरी साल है हमको इसको मनाना है। नहीं, ये हिजरी साल सहाबा इकराम की ज़िंदगी में ही नाफिज हो गया था। हिजरी साल मुहर्रमुल हराम जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं उनकी हुर्मत का ख्याल करने के लिए कहा गया। बाकी मुहर्रम में किसी तरह का कोई जश्न मनाना है, कोई महफिल सजानी है, किसी तरह से इस पहले दिन का आगाज करना, ऐसा कहीं भी इस्लाम ने हमको नहीं बताया। सहाबा इकराम की जिंदगी गुजरी, ताबईन की गुजरी, तबा ताबईन की गुजरी, मुहर्रम का साल, हर मुहर्रम का महीना हर मुसलमान की जिंदगी में आया, लेकिन किसी ने कहीं भी कोई तरीका नहीं इख्तियार किया इसको मनाने का, जश्न मनाने का। इसलिए हम मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है, रवा नहीं है कि हम हैप्पी न्यू ईयर कह के किसी को कार्ड भेजें या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भेजें या किसी को ज़बान से इस तरह की मुबारकबाद दें। ये मुख्तलिफ तरह के जो जश्न होते हैं ये यहूद और नसारा की कौमों की देन है। उन लोगों के यहाँ फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, चिल्ड्रन डे, ये डे सारे डे उन लोगों के बनाए हुए हैं। चूंकि उनके यहाँ रिश्तों का कोई खास मकाम नहीं होता है, माँ बाप को अलग रखा जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इन रिश्तों को वक्त देने के लिए एक एक दिन उन्होंने मुकर्रर कर दिया कि ये फादर्स डे है, इस दिन वालिद की बहुत ज्यादा इज्जत करने का। चूंकि वहाँ रिश्ते अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रखा जाता है, एक साथ उन लोगों ने अपने निज़ाम को, खानदानी निज़ाम को नहीं रखा है। तो फादर्स डे एक दिन रख दिया बाप की इज्जत के लिए, मदर्स डे एक दिन रख दिया माँ की इज्जत के लिए, इसी तरह से चिल्ड्रन डे, टीचर डे, उस्ताद की इज्जत के लिए भी एक दिन उन लोगों ने तायुन कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि ये सारे डेज जो हैं यहूद और नसारा के बनाए हुए हैं, इस्लाम का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाना, उसकी मुबारकबाद देना या किसी भी डे को मनाना गोया यहूद और नसारा की मुशाबिहत करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा, जिसकी नक्काली करेगा, जिसके पीछे पीछे चलेगा, जिसके आसार पर नक्शे कदम पर चलेगा, वो उन्हीं में से हो जाएगा। तो गोया हम इनके तरीके को अगर अपना रहे हैं, इनके त्योहार को हम मना रहे हैं, तो गोया हम यहूद नसारा के साथ मिल रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, इस्लाम के दायरे से खारिज हो रहे हैं। तीसरी चीज जो होती है इस नए साल के आने पर क्या होता है कि पिकनिक, इसमें जो लोग रहते हैं 31 दिसंबर से पहले ही होटल वगैरह सब बुक हो जाता है, जहां जिसको जिस घूमने की जगह पर जाना है, प्लेसेस वगैरह सब बुक हो जाती है, एडवांस रकम वहां पर दे दी जाती है, होटल में एडवांस बुकिंग हो जाती है, खाने पीने, शराब नोशी, नाचने गाने, म्यूजिक का सारी चीज़ों का एहतमाम उस रात के लिए कर दिया जाता है। दरअसल ये जो पिकनिक होती है मौज मस्ती का नाम होती है, वहाँ पर सिर्फ मौज मस्ती बेहयाई के काम अंजाम दिए जाते हैं। इसलिए हम वालिदैन को, सरपरस्त को चाहिए कि अपनी औलाद पर, जो कि आज की नई नस्ल है, उस पर कड़ी नज़र रखें। उनको इस रात में किसी भी तरह का जश्न मनाने की या दोस्तों के साथ बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त ना दे। ये जो नई नस्ल है ये कौम का सरमाया है, अमानत है। सारी उम्र के पहलू में सबसे चीज जो पसंद की गई है, जवानी के दौर को पसंद किया गया है, क्योंकि इस दौर में इंसान बहुत ताकतवर होता है, जवान होता है, मजबूत होता है, अल्लाह की इबादत कर सकता है। नौजवान अगर अपने सही अकीदे, हकीकी मकसद को पहचान ले तो वो कौमों का रुख बदल सकता है। इतनी ताकत होती है उसके अंदर, अल्लाह ताला ने वो सलाहियत उस नौजवानी के अंदर डाली हुई है। तो हमें चाहिए कि इस मौके पर अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखें, चूंकि सरपरस्त हजरात की जिम्मेदारी बनती है कि अपने वालिदैन की कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, हर एक से अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी का हक किस तरह से अदा किया। औरत भी अपने घर की निगरान है, उससे उसकी जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश दी। माँ की तरबियत का, माँ की परवरिश का बहुत ज्यादा दखल होता है बच्चों के अंदर। नेपोलियन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वो क्या कहता था, गिव मी अ गुड मदर एंड आई विल गिव अ गुड नेशन। तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुमको एक अच्छी कौम तैयार करके दे दूंगी। तो माँ की परवरिश, माँ की तरबियत का बड़ा अमल दखल होता है इंसान की कामयाबी के पीछे। इसीलिए कहा गया कि माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह होती है। बाकी स्कूल, कॉलेजेस या मदरसी मकातिब में तो बच्चा बाद में जाता है, पहला सबक वो माँ की गोद में सीखता है।
اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کے تئیں فکر مند ہونا چاہیے اور اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانا چاہیے۔ اس نئے سال کے ساتھ کچھ لوگوں کے توہمات، الگ الگ فکر بنی ہوئی ہے، ایک بولتے ہیں ایک غلط عقیدہ بنا ہوا ہے۔ کس طرح سے؟ کچھ کا تعلق تو رسم و رواج سے اور کچھ کا تعلق سیدھا عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نئے سال کی آمد پر گھر کے پرانے فرنیچر کو باہر نکال دو اور نئے فرنیچر کو لے آؤ۔ یہ ایک توہم ہوتا ہے کہ یہ پرانی چیزیں، پرانا کباڑ ہے، جو بھی ہے سب نکال دو، اب نیا سال آ رہا ہے، نئی چیزیں لاؤ۔ اور ساتھ میں وہ لوگ کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ گھر سے جتنے بھی کچرے ہیں، اسٹور کے جتنے سامان ہیں، سب پھینک دو۔ کچرا نکالنا گویا یہ نئے سال کے آنے پر ہم اپنے گھر سے بدقسمتی کو نکال رہے ہیں، نحوست کی چیزوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ دوسری چیز، کہیں پر تو کیا کیا جاتا ہے کہ سکہ اچھالا جاتا ہے، قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے سکہ دیکھ کر، اور کہیں سال کے پہلے دن کو رونا یا اس دن کسی بھی غم کے منانے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ سال کے پہلے دن روئیں گے تو پورا سال روتے ہوئے گزرے گا، اس لیے اس دن رونا نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں اس قسم کی روایات اور توہمات کا کہیں بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں اپنے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تھوڑا زیادہ نہیں، کم زیادہ نہیں، اعتدال کے ساتھ نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو پورا کا پورا اسلام کے رنگ میں ڈھال دو، اللہ کے احکام کو، نبی کے فرمان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ جس طرح اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ اس طرح سے کھڑے رہو، ایسے اکڑ کر نہ چلو، اس طرح سے بیٹھو، ٹیکا لگا کر نہ بیٹھو، اس طرح سے کھاؤ، اس طرح تواضع کے ساتھ زمین پر اکڑ کر پیر پٹک کر نہ چلو، یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے، لیکن اسلام نے اس کی رہنمائی دی ہے اور یہ سب فالو کرنا ہے ہم کو۔ یہ نہیں کہ بڑے بڑے احکام، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، باقی ساری چیزوں میں ہمارے گھمنڈ پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا تم کو داخل ہونا ہے، اسلام کے ایک دو نظام کو نہیں فالو کرنا ہے، پورا کا پورا ہم کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو بدعت و خرافات کی چند جھلکیاں تھیں۔ اب ہم لوگ اس طرف بڑھتے ہیں کہ نیا سال اگر مطلب یہ جشن کیوں منائیں، کیا وجہ ہے، کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے؟ تو پہلی بات دیکھو، نئے سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کے موقع پر منانے والے جشن کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے۔ کہیں پر ایسا ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ جو سال ختم ہو رہا ہے ہمارا بہت مصیبتوں والا سال تھا، پریشانیوں والا سال تھا، اس سال میں ہم نے بہت دکھ جھیلے ہیں، بہت دکھ کاٹے ہیں، اب یہ سال ختم ہو رہا ہے، یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائے گی، ایسا ہے؟ کہیں گارنٹی ہے اس بات کی؟ کہیں ضمانت ہے اس بات کی کہ دکھوں کا سلسلہ اب سال ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے، یہ سال جو گزر رہا ہے اپنے ساتھ ہماری زندگی کے سارے مسائل کو لے کر جا رہا ہے؟ کہیں ایسا نہیں۔ اگر ہم لوگ اس کی امید نہیں کر سکتے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے؟ ہم جشن کیوں منائیں کہ نیا سال آ رہا ہے، اپنے ساتھ خوشیاں لائے گا، ہماری نصیب بدل جائے گی، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ گارنٹی ہے اس بات کی؟ نہ گزرنے والے وقت کے ساتھ ہمارے دکھ گزریں گے، نہ آنے والے وقت میں ہمارے سال بدلیں گے، نہ دن بدلیں گے۔ کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہر وہ چیز ہم کو مل کر رہے گی جو اللہ نے ہم کو لکھی ہے۔ سال اور دن کے بدلنے سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ تقدیر میں جو مصیبت جس سال، جس مہینے، جس تاریخ کو، جس وقت میں لکھی ہے وہ ہم تک پہنچ کر رہے گی، وہ ٹلنے والی، ختم ہونے والی، رکنے والی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جانے کے موقع پر، آنے کے درمیان میں یہ جشن کیوں، یہ خوشی کیوں؟ کسی بات کی تو کوئی بھی گارنٹی یہاں پر ہم کو نہیں مل رہی ہے کہ ہمیں غموں سے چھٹکارا مل جائے گا یا آنے والے سال میں خوشیوں کا کوئی تہوار مل جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیا سال اور اسلام کیا کہتا ہے نئے سال کے متعلق۔ پہلی چیز، عیسوی سال مسلمانوں کا نہیں ہے، گویا 1 جنوری سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسلام میں نئے سال کی آمد محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے 4 حرمت کے مہینے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ محرم کے آنے پر اگر ہم لوگ ریڈی ہونا چاہتے ہیں تو کیا محاسبہ کریں، کیا تیاری کریں؟ نیا سال تو نہیں ہے،
नहीं मनाना है, लेकिन अगर हमको कोई तैयारी करना है कि मेरा ये साल ऐसे ही गुजर गया, ये मुहर्रम आ गया, एक नया साल मेरी ज़िंदगी का शुरू हो गया, मेरी ज़िंदगी के इतने दिन ख़त्म हो गए, मैंने ये गुजरा हुआ साल किस तरह का गुजारा, अल्लाह की कितनी इबादत की, कितनी नेकियों से अपने नामा अमाल को मैंने भरा, कितनी तिलावतें की, कितनी कुरान मैंने ख़त्म की, या कितने दिन मैंने अल्लाह की इबादत के बगैर गुजार दिए। अगर हमको कोई तरतीब, कोई प्लान सेट करना है तो हम ये सेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना है। और हमें ये मुहासबा करना है कि ये गुजरा हुआ साल जो गुजरा है, हमने उसके अंदर अगर कोई भी नेकी नहीं की तो कयामत के दिन जो सज़ा होगी, दुनिया की जो सरगर्मियां हैं, न्यू ईयर का जश्न है, जो भी बुराइयां हम कर रहे हैं, हम इस बात से गाफिल हैं कि हमारे एक एक अमल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। कयामत के दिन एक किताब की शक्ल में हमारा नामा अमाल हमारे हाथ में मौजूद होगा। देखेंगे हम लोग, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, माली हाज़िल किताब, क्या हो गया है इस किताब को, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने ना किसी छोटे चीज को छोड़ा ना बड़े चीज को छोड़ा, इल्ला अहसाहा, अल्लाह मैंने दिन में जो गुनाह किए थे, अल्लाह मैंने रात में कमरे में छुपकर जो बुराई चादर के अंदर की थी, अल्लाह ये भी मौजूद है। हम गाफिल कैसे हो सकते हैं? एक जात है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे नींद तो नींद, उसे ऊँग तक नहीं आती। हम कैसे गाफिल हो चुके हैं? हम क्यों अपनी जिंदगी के एक एक दिन को यूं ही बगैर इबादतों के गुजारे? अपने हकीकी मकसद को छोड़कर हम किस तरह से इस दुनिया में मगन हो सकते हैं? ये दुनिया तो रंगीनी की चीज है ही, अल्लाह ताला इसीलिए कहता है बल तुसिरून अल हयातद दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी, तुम्हारी इंपॉर्टेंस सब दुनिया के ऊपर मुनहसिर है। लेकिन जान जाओ वल आखिरत खैर व अबका, आखिरत बेहतर है, बाकी रहने वाली आखिरत है। और दुनिया कुल्लु मन अलैहा फान, जो कुछ इस रुए जमीन पर है हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। वह अबका वजू रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, अगर बका है, बाकी कोई चीज बचेगी तो रब्बे करीम की जात बचेगी, और कोई चीज बचने वाली नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर सूरे अस्र नाजिल करते हुए हमें इंडिकेट कर रहा है। अल्लाह ताला कहता है वल अस्र, कसम है ज़माने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम खाई। क्यों खाई? इसलिए कि जो कुछ हो रहा है ज़माने में हो रहा है, वक्त में हो रहा है, ये ज़माना और ये वक्त अल्लाह ताला ने ही बनाया है, इसलिए अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है। वक्त ये इंसान की सबसे बड़ी जमा पूंजी, वक्त इंसान की सबसे बड़ी जमा पूंजी है। बाज़ असलाफ क्या कहा करते थे कि हमने इस सूरे असर की जो तफसीर है, इसका मतलब हमने एक बर्फ बेचने वाले से समझा कि जो एक बर्फ बेचने वाला होता है, वो बर्फ बेच रहा है और जैसे जैसे दिन ढलता है वो अपनी आवाज में तेजी लाता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मेरी बर्फ खरीद लो। क्यों? क्योंकि जूं ही जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वो कहता है मेरा सरमाया पिघलते जा रहा है, मेरा सरमाया गलते जा रहा है, मेरी रोजी, मेरी आमदनी कम हो जाएगी, मेरा सरमाया पिघल जाएगा, इससे पहले कि वो गल जाए लोग उसको खरीद लें। एक बर्फ बेचने वाला किस तरह अपने सरमाए की फिक्र कर रहा है। ये जमाना, ये वक्त, ये दिन, ये रात हमारी जिंदगी में बर्फ की तरह पिघले जा रहे हैं, गलते जा रहे हैं। ये रेत की मानिंद है, इनको पकड़ा नहीं जा सकता। हाँ, पकड़ा उसी वक्त को जा सकता है जिसमें हम नेकियां कर लें। जो नेकियां हम कर लेंगे गोया वो रिकॉर्ड हो जाएंगे, फरिश्ते उसको नोट कर लेंगे, वो जमा हो जाएंगे हमारे अमाल में, हमारे नामा अमाल में वो दर्ज हो जाएंगे। तो वरना बाकी सारे के सारे वक्त जो इबादत के बगैर गुजरेंगे वो बर्फ की तरह ही पिघल जाएंगे, हाथ नहीं आएंगे। इसलिए हमें सोचना ये चाहिए कि माहो साल जो शुरू हो रहा है, जो ख़त्म हो रहा है, पहला सबक तो हमें ये मिलता है कि ये जो माहो साल को मैं ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ, शबो रोज़ को ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ, ये रात और दिन जो ख़त्म हो रहे, ये नहीं ख़त्म हो रहे, असल में ख़त्म होने के करीब तो मैं हो रहा हूँ। ये दिन और रात, ये माह और साल, ये मुझे मेरे खात्मे की आमद का बता रहे हैं कि तुम ख़त्म होने वाले हो, तुम्हारे खात्मे का वक्त करीब है। बस साल के खात्मे में और हमारे खात्मे में एक फ़र्क है। साल तो 31 दिसंबर को ख़त्म होता है और हमारे खात्मे की कोई भी खबर नहीं। कब ख़त्म हो जाएगा हमारा दिन, हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, कब रुक जाएगी, इसके लिए कोई दिन, कोई डे मुकर्रर नहीं है। साल के ख़त्म होने का एक दिन मुकर्रर है। लोगों ने कहा 31
दिसंबर, साल का आखिरी दिन 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल। लेकिन इंसान की जिंदगी का चिराग, उसकी जिंदगी की रात, उसकी जिंदगी का सूरज कब डूब जाए किसी को पता नहीं है। कोई चल रहा है, उसको पता नहीं घर पे पहुंचूंगा कि नहीं। कोई घर में है, उसको मालूम है कि मैं सो रहा हूं, उठूंगा कि नहीं। किसी को कोई भी इल्म नहीं है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को गनीमत जानते हुए अल्लाह की इबादत करते हुए गुजारना चाहिए। खुतबे के शुरू में मैंने हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को गनीमत जानो 5 चीजों के आने से पहले। नंबर 1, शबाबका क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे के आने से पहले। बुढ़ापा आ जाए इससे पहले ये जो जवानी तुमको मिली उसकी कदर करो, उसको गनीमत समझो। क्योंकि इस जिंदगी में, इस उम्र में, उम्र के इस हिस्से में जो तवानाई, जो ताकत हमारे अंदर मौजूद होगी, जो भी इस उम्र में होगा, जो तवानाई उसके पास होगी, वो बुढ़ापे में नहीं होगी। इसलिए एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर होता है। बेहतर किस मामले में अल्लाह के रसूल ने कहा? ये नहीं कि हाँ हेल्थ में या किसी चीज में, नेकी के मामले में। क्योंकि जो ताकतवर है, जो वो नेकी कर सकता है, वो बुढ़ापे में कमजोर मोमिन वो नहीं कर सकता। आज मस्जिदों में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कुर्सियां रखी होती है ना। कुछ औरतें ऐसी हैं जो खड़े होकर नमाज नहीं, उनका जिस्म उनको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है, ताकत नहीं हो रही है उनकी, वो नहीं रुकू सुजूद कर पा रहे हैं उस तरह से जिस तरह से एक जवान और ताकतवर आदमी या औरत या लड़की कर सकती है। तो गनीमत समझना है हमें, शबाबका क़ब्ल हरमिक, जवानी को गनीमत समझना है इससे पहले कि ये ताकत खत्म हो जाए, ये तवानी खत्म हो जाए, ये जवानी खत्म हो जाए, ये शबाब ढल जाए। अब बुढ़ापा जब दस्तक दे देगा तो चाह कर भी हम नेकी उस तरह से नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, वसीहतका क़ब्ल सक़मी, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। इससे पहले कि बीमारी आ जाए, अपनी तंदुरुस्ती को तुम गनीमत जानो। क्योंकि कल कितने अच्छे खासे थे, आज वही लोग बिस्तरे मौत पर पड़े हुए हैं, दिन गिन रहे हैं, घड़ियां गिन रहे हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं। अचानक ऐसे उनकी जिंदगी में बीमारी ने दस्तक दी थी। अच्छा खासा इंसान है, कारोबार में मसरूफ है, काम धंधे में मसरूफ है, हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया उसे, हार्ट आ गया उसे। तो किसी को भी कुछ पता नहीं है कि बीमारी किस मोड़ पर आ जाएगी। ये भी पक्का नहीं है कि हाँ ऐन बुढ़ापे पर आएगी। जवानी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौत भी बुढ़ापों के, बूढ़ों के लिए खास नहीं है कि उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं, अब इनकी ये उम्र हो चुकी है, अब इनको मौत आएगी। नहीं, आज तो कयामत के करीब अचानक मौतें ज्यादा होगी। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है और हमारे सामने तहकीकी जायजा होगा कि जितनी जवान मौतें कसरत से हो रही है, उतनी बूढ़ों की मौतें नहीं हो रही। बहुत लुज बहुत ज़ईफ है, बहुत कासिर है, उठ बैठ नहीं पा रहे, लेकिन वो लोग पड़े हैं बिस्तरों पर और जवान चल दे रहे, खत्म हो जा रहे। तो जितनी जवान मौतें कसरत से हो रही, उतनी मौतें बूढ़ों की नहीं होती। तीसरी चीज, वगिना का क़ब्ल फ़क़्री, कि अपनी दौलत को गनीमत जानो मोहताजी आने से पहले, गरीबी आने से पहले। इस चीज को गनीमत जानो कि आज तुम देने वाले बने हो, कल लेने वाले ना बन जाओ। अल्लाह ने आज तुमको दौलत दिया है, पता नहीं वक्त का पासा कब पलट जाए, कब क्या हो जाए। रातों रात एक इंसान अमीर हो जाता है और रातों रात एक इंसान फुटपाथ पर आ जाता है। गनीमत जानो इस वक्त को, और इस वक्त को जो मालदारी, जो दौलत की नेमत अल्लाह ने, ये भी एक नेमत है, लेकिन नेमत किस वक्त में? जब हम उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह के काम में खर्च करें, अल्लाह के दीन के काम में हम उसको सर्व करें, तब ये नेमत है। वरना ये ज़हमत है। अल्लाह कयामत के दिन मालदारों को रोक दिया जाएगा जन्नत के दरवाजों पर, गरीबों को दाखिले की इजाजत होगी। मालदारों को अपनी मालदारी का हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने दौलत कहाँ से कमाई, कहाँ पर खर्च की। बिना हिसाब किताब के आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। नंबर चीज, चौथी चीज क्या है? वह फराग का क़ब्ल शुगलिक, अपने खाली वक्त को, अपनी फुर्सत के मौके को गनीमत जानो क़ब्ल शुगलिक, इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ, मसरूफ हो जाओ, तुम्हारे पास चाह कर भी नेकी करने का कोई वक्त ना हो, इतनी मशगूलियत तुम्हारे पास आ जाए। आज मौका है, वक्त है,
फरागत है। अफसोस करो उस वक्त पर जो अल्लाह की इबादत के बगैर गुजर जाए, अफसोस करो उस वक्त पर, उस लम्हे पर जो नेकी के बगैर गुजर जाए। कल पे टालते टालते ना जाने कितने दिन गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं कि आज नहीं कल से नमाज पढ़ेंगे, आज नहीं कल से ये काम करेंगे, नहीं कल से इंशाल्लाह हम कुरान की तिलावत का आगाज पाबंदी के साथ करेंगे। कहा जाता है कल ना कर कल का कोई भरोसा नहीं, फिक्र उकबा की कर आज ही बेखबर, कल ना कर कल का कोई भरोसा नहीं। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु आमिला लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो आज ही तैयारी करे, किस चीज की? बादल मौत, मौत के बाद की आज से ही तैयारी कर ले, जखीरा कर ले, जमा कर ले, नमाज की इतनी कसरत अपने नामा अमाल में जमा कर ले कि जब कब्र में मुर्दे को लेटाया जाए, फरिश्ता वहां मौजूद हो तो नमाज आकर खड़ी हो जाए, वहां से सदका और खैरात पैर के पास से आके खड़े हो जाएं, वहां से नमाज कुरान की तिलावत आकर खड़े हो जाएं। इस तरह से हम अपने नामा अमाल को नेकियों से भरें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे इस चीज की। वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अक्लमंद वो है जो अपनी मौत की पहले ही तैयारी कर ले, और आजिज वो शख्स हैं कि जो सिर्फ अपने ख्वाहिशों की पैरवी कर रहा है, ख्वाहिशों की, अपने दिल की बातें मान रहा है, कल से करूंगा कल से करूंगा, और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद भी लगाए जा रहा है। पांचवी चीज है वह हयात का कबला मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर करो इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास आ जाए। मौत आ जाएगी फिर एक सुभान अल्लाह कहने की भी गुंजाइश नहीं होगी। ये रूह, ये जिस्म, जैसे ही ये रूह इस जिस्म से निकलेगा, ये जिस्म दूसरों का मोहताज होगा, दूसरे नहलाएंगे, दूसरे गुस्ल देंगे, दूसरे कफन पहनाएंगे, दूसरे हमको उठाएंगे। हमारे अंदर इतनी सकत नहीं होगी कि हाँ हम लोग एक इस्तिग़फ़ार का जुमला अपने मुंह से निकाल लें। तो इन पांच चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत कहा है। उन्हीं में से सबसे बड़ी चीज़ जो इस साल से या इस मौजू से टकराती वो चीज़ क्या है? वह फराग का कबला शुभलिक, कि जो वक्त है ना, ये जो मौका है, ये जो फुर्सत का मौका जो जा रहा है, इसे गनीमत समझो। इससे पहले कि अल्लाह हमसे ये वक्त छीन ले, ये जिंदगी छीन ले, मौत आ जाए, हमें नेकी करने का कोई मौका ना मिले, इससे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। सूरे असर, वल असर का जो एक मतलब उलमा ये भी निकालते हैं कि जब असर का वक्त होता है तो वो इस बात की अलामत होता है कि दिन ढलने के करीब है। असर का वक्त हुआ, असर और मगरिब के दरमियान कोई ज़्यादा फासला, आज तो वैसे भी दिन बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी से असर के बाद मगरिब का वक्त आ जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरह असर नाजिल हुई। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर असर का वक्त था, हम मगरिब के दौर में हैं। कभी भी जिंदगी की सूरज डूब सकती है और नहीं तो कभी भी क़यामत आ सकती है। क़यामत कभी भी आ सकती है। बड़ी बड़ी कुबरा निशानियां बाकी हैं। हाँ, ये कहा ना जाए कि हाँ अभी तो दज्जाल का आना बाकी है, याजूज माजूज बाकी है, ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, इमाम मेहदी आएंगे, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां, हदीस के अल्फाज हैं कि जैसे एक जाहिर हुई तो मोतियों की माला जब टूटती है, एक मोती गिरी तो फटाफट सब गिरने लगती है। क़यामत की एक कुबरा निशानी जाहिर होने की देर है। जैसे एक निशानी जाहिर होगी, यके बाद दिगरे फौरन एक के पीछे एक दूसरी निशानियां जाहिर होती चली जाएगी। इसलिए वक्त ख़त्म है, असर ख़त्म हो चुकी है, मगरिब कभी भी हो सकती है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इज़ाम सईता फला तंतज़िर सबा, कि जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो। गारंटी नहीं है कि सुबह तुमको मिलेगी, तुम सोओगे तो सुबह होगी, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की शाम भी इस शाम के साथ हो जाए। वइज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, अगर तुम सुबह कर लो तो फिर शाम का इंतजार ना करो। क्या पता तुम जिंदा रहते हो या नहीं रहते हो। अपनी हर नमाज को आखिरी नमाज समझते हुए अदा करो। न्यू ईयर की जो रात मनाई जाती है, अगर उस रात किसी का इंतकाल हो जाए, इंतकाल की रात अगर वो बन जाए तो कुल्लो अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, हर बंदा उसी पर उठाया जाएगा जिस पर उसका इंतकाल हुआ, जिस पर उसकी मौत हुई। फिक्र करनी चाहिए उस रात पर। अगर हम लोग, हमारे अंदर रात के वक्त कोई गुनाह करने का, कोई बुराई करने का इरादा आ रहा है तो ये समझ ली कि ये रात का वक्फा है, ये रात की घड़ी है। अल्लाह ना करे अगर इसमें हमारा इंतकाल हो गया, किस बुराई के साथ हम सो रहे हैं, हमारा खात्मा इस पर उठा तो रोज़े महशर सबके सामने इसी बुराई के साथ हम उठेंगे, खड़े होंगे।
तो इसलिए जो वक्त नेकियों के बगैर गुजरा उस पर अफसोस करें, इस्तिग़फ़ार करें और नए साल का जश्न मनाने के बजाय हमें क्या करना है। हम लोगों को एक शायर क्या कहता है कि एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। वाकई में एक साल जैसे एक दीवार है, उसमें से एक ईंट गिर गई, यानी वो इमारत कमजोर हो रही है, अब उसमें से ईंट गिरते जा रही है और लोग क्या कह रहे हैं, नया साल मुबारक। ये किस बात की मुबारकबादी है। हमें तो करना ही चाहिए कि अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो हमें इस साल के शुरू में हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, मंसूबा बनाना चाहिए कि अब इंशाल्लाह मैं पाबंदी के साथ नमाज पढ़ूंगा। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने लोगों को देखो खुशहाली दी है, फरावानी है उनके पास मालो दौलत की, उनके घर परिवार सुखी हैं, बच्चे खुशहाल हैं, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, कारोबार में मगन है, बीवियां घर में मसरूफ हैं, हय्या अलस सलात की आवाज़ आ रही है, अजान हो रही है, लेकिन कोई भी नमाज पर लब्बैक नहीं कह रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज की तौफीक अल्लाह ने उनको नहीं दी है। आज हम लोग नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन कारोबार में, घरदारी में मसरूफ हैं, बच्चों में, बच्चों के मुस्तकबिल को, बच्चे के फ्यूचर को गोल्डन फ्यूचर बनाने के लिए हम परेशान हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नमाज हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ मौज़िन दिन में 5 बार दे रहा है, लेकिन हम उस पर कान नहीं धरते, खाली मनसूबा बंदी हो रही है, अगले साल से, अगले दिन से, अगले महीने से, जुमा से तो पक्का शुरू हो जाए, इस चीज़ की मनसूबा बंदी हो रही, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। आज मौका है, कल कयामत के दिन क्या होगा, यौमा युक्शफु अन साक़िन व युदऔना इला सुजूद, जब पिंडली खोली जाएगी ना तो बुलाया जाएगा लोगों को सजदा करने के लिए। खाशियतन क्या होगा, फला यस्ततीऊन, ताकत नहीं रखेंगे वो लोग, सजदे के लिए बुलाया जाएगा, फला यस्ततीऊन, सजदा करना चाहेंगे, पीठ अकड़ जाएगी, नहीं सजदा कर पाएंगे। हाँ, खाशियतन अब्सारुहुम, उनकी निगाहें झुकी होंगी, तरहकुहुम जिल्ला, जिल्लत और रुसवाई उनके ऊपर छपकी होगी, गर्दालूद बनी होगी। वक़द कानू, वो लोग सजदा करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, अकड़ जाएगी पीठ, अल्लाह ताला कहेगा वक़द कानू युदौना इला सुजूदी वहुम सालिमून, जब तुम सही सलामत थे तब भी तो बुलाया जाता था, ये सदाएं गूंजती थी, तब तो तुम सजदा नहीं करते थे। आज उस जिंदगी में जब मौका था, फरागत थी, सेहत थी, तंदुरुस्ती थी, सही सालिम थे, जवाना थे, तवानाई थी, उसके बावजूद तुमने सजदा नहीं किया। आज तुम्हारे सजदे की मुझको ज़रूरत नहीं है। अलियाज़ बिल्लाह, हमें अल्लाह की इबादत करना है, कौन सा दिन आखिरी दिन बन जाए, कौन सी रात आखिरी शब हो जाए, ये किसी को पता नहीं है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए। बेमकसद अल्लाह ने नहीं पैदा किया है। अल्लाह ताला कहता है अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुमको अबस बेकार पैदा किया है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम हमारे पास लौटाए नहीं जाओगे, ऐसा नहीं है। एक आयत में अल्लाह ताला कहता है वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ लाइबीन, हमने आसमान और ज़मीन को खेल तमाशा करने के लिए नहीं बनाया है। इन आराधना, अगर हम ये इरादा हमारा होता तो हम इसको आसमान पर ही बनाकर कर लेते। अगर हमारा इरादा इस दुनिया को, आसमान ज़मीन को बनाने का इरादा दिल लगी का होता ना तो आसमान ही पर कर लेते। ये लंबी चौड़ी दुनिया, कायनात बनाने की हमको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मकसद ये नहीं है दुनिया को बनाने का। दुनिया को बनाने का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत है। इसलिए इस दुनिया के पीछे पड़कर अपने मकसद को ना भूलें। इस दुनिया की रंगीनी में मस्त होकर, माहो साल में फंस कर अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें और हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाने वाले इस दिन का, इस साल का, इस दुनिया के पीछे मर मिटने वालों के लिए ये चीज़ काफ़ी होनी चाहिए। ये हदीस कि अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया की हैसियत मेरे नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो क्या होता? अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। हम देखो कि कितने सारे काफिर हैं, कुफ्फार हैं, बहुत ऐश की जिंदगियां गुजार रहे हैं, कितनी ऐशो इशरत से उनकी जिंदगी, उनके मुकाबले में मोमिन की जिंदगी तंग है। और दुनिया सिजनुल मोमिन है ना, दुनिया तो है ही जेल खाना मोमिन के लिए। वह जन्नतुल काफिर, काफिर की जन्नत है ये।
تو اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافر خوشحال ہیں, عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت اگر حیثیت ہوتی تو اللہ ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا اس شخص کو جو اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے تو ان کی عادت تھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے. ایک بوڑھا شخص گزرا, اس کو بلایا اور کہا کہ چلو کھانا کھاؤ. تو جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو کہا کہ کل بسم اللہ, بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. تو وہ کہتا ہے ابراہیم میں اپنے معبود کے نام سے اپنے معبود کا نام لے کر کھاؤں گا, تمہارے معبود کا نام لے کر کیوں کھاؤں. 80-90 سال کا وہ بوڑھا تھا. ابراہیم اسلام کہتے ہیں جب میرے رب کے نام لے کر تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو تم چلے جاؤ. اٹھا دیا ان کو کہ جب بسم اللہ کہہ کر تم نہیں کھاؤ گے تو پھر میرے ساتھ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب اور کہتا ہے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر 90 سال کی تھی, اس 90 سال کے وقت میں اس نے کبھی بھی میرا نام نہیں لیا اور 90 سال تک میں اس کو پالتا آیا ہوں, اس کو کھلاتا آیا ہوں, اور آج ایک بار اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو نے اس کو کھانے سے دسترخوان سے اٹھا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اس دنیا میں غافل ہو چکے ہیں اور ہم آخرت سے غافل ہو گئے ہیں اور جنت سے غافل ہو گئے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلۃ اللہ غالیہ, الا ان صلۃ اللہ غالیہ, جان لو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے, اور الا ان صلۃ اللہ الجنہ, اللہ کا سامان کیا ہے, جنت. جنت سستی نہیں ہے, بہت مہنگی, اور مہنگی اس کی قیمت یہی ہے. عبادت و ریاضت کر کے اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑ دو اور اپنی خواہشوں کو اسلام کے, اللہ کے فرمان کے, نبی کے فرمان کے مطابق کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشم کا کپڑا ایک بادشاہ بھیجتا ہے. ریشم کا کپڑا آتا ہے تو وہ جیسے آتا ہے وہ جبہ صحابہ کرام دیکھتے ہیں اس کو تو لوگ اس کو چھونے لگتے ہیں, چونکہ عرب میں ریشم کا کپڑا نہیں پہنا جاتا تھا, وہ چیز وہاں میسر نہیں ہوتی تھی. جب وہ کپڑا آتا ہے تو صحابہ کرام سب اس کو ایسے چھونے لگتے ہیں, اس کی سافٹنیس, ملائم پہ سب حیرت ہوتے ہیں کہ کتنا ملائم ہے, کتنا نرم ہے, کتنا نرم و نازک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کتنا زیادہ حیرت زدہ ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, اتعجبون من ھذا, تمہیں اس سے تعجب ہو رہا ہے, اس کپڑے پہ تعجب ہو رہا ہے. لمنادیل سعد ابن معاذ الین من ھذا, سعد ابن معاذ, میرے صحابہ سعد ابن معاذ کو جنت میں جو رومال دیا جائے گا وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہوگا. اللہ اکبر. ایک رومال, سعد بن معاذ کو جو رومال ملے گا وہ بھی اس سے زیادہ, ایک چھوٹی چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ وہ بھی اس سے زیادہ نرم ہوگا. تم لوگ اتنے پر تعجب کر رہے ہو, جنت میں تو اس سے بڑی بڑی چیزیں موجود. ایک چھوٹی چیز کی مثال دی کہ رومال کتنا سافٹ ہوگا وہاں کا, اتنا ملائم ہوگا کہ دنیا کے تمام ریشم کے کپڑے اس رومال کے آگے فیل ہوں گے. دنیا میں آدمی پراپرٹی خریدتا ہے, جگہ خریدتا ہے, زمین خریدتا ہے, اور ہر جگہ کی قیمت, ہر پراپرٹی کی قیمت علاقے کے اعتبار سے ہوتی. کہتے ہیں کہ یہ جگہ بہت پوش ہے نا, یہاں کی قیمت بہت زیادہ ہے, یہاں کے چھوٹے چھوٹے مکانات بھی کروڑوں میں بکیں گے چونکہ پوش علاقہ ہے. لیکن حدیث میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لموضع صوت فی الجنہ, جنت میں ایک کوڑا دنیا کے برابر, جنت میں ایک کوڑے دان کی جگہ, ایک کوڑا دان کتنا, 1 فٹ کا ہوگا, 1 اسکوائر فٹ کا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے برابر وہاں ایک کوڑا دان. دور جائیے, اس مثال کو بھی چھوڑیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فجر کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا 2 تمام چیزوں سے بہتر ہے نا. 2 سنتیں جو فجر میں ادا کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا و ما فیہا, جو کچھ ہے, جو رنگینی ہے, جو یہ عیش و عشرت کی چیزیں, ساری چیزوں سے بہتر ہے وہ 2 سنتیں جو ہم ادا کرتے ہیں. تو آج ہم لوگوں کو اپنی دولت پر ناز ہے, اپنے دبدبے پر ناز ہے, اپنی طاقت پر ناز ہے. دنیا کی طاقت پر بڑا ناز تھا قوم عاد, قوم سمود. یہ 2 قومیں گزری ہیں نا, قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا لم یخلق مثلھا فی البلاد, اس جیسی مضبوط قوم میں نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا. بڑا گھمنڈ تھا ان لوگوں کو اپنی مضبوطی پر, اپنی طاقت پر, اپنے دبدبے پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کأنہم اعجاز نخل خاویہ, اللہ نے ان کو ایسے اکھاڑا, ایسے مٹایا گویا کہ وہ کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح ہو. ایسی ڈیڈ باڈیز ان کی پڑی تھی کہ سر کہیں اور ہے, دھڑ کہیں اور ہے. ایسے اکھاڑا,
किस कौम को जिसके बारे में अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, उस जैसी कौम मैंने दुनिया में बनाई ही नहीं है। इतनी ज्यादा वो लोग पहाड़ों को तराश तराश के मकानात बनाते थे, महल्लात बनाते थे। उनका खात्मा अल्लाह ने कैसा किया, कान्नुम आजाज़ु नखलिन खाविया, खजूर के सड़े हुए तनों की तरह पड़े थे, कहीं पर और सर पड़ा था, कहीं पर धड़ पड़ा था, जिसका हिस्सा बिखरा हुआ था। उस ताकतवर कौम का अंजाम क्या हुआ, अल्लाह के अज़ाब क्या हुआ। कोई ताकत किसी को बचा नहीं सकती है। बड़ा घमंड था फिरौन को अपनी हुकूमत पर, अपनी सल्तनत पर। अना रब्बुकुमुल आला, मूसा अलैहिस्सलाम के कैसे कहता था, हाज़ा अनहारुन तजरी मिन तहती, ये नहरें, ये दरिया मेरी सल्तनत के नीचे से बहती हैं। क्या किया अल्लाह ने, उसी की सल्तनत की दरिया में, नदी में गर्क कर दिया अल्लाह ने। कहीं दूर नहीं, उसी की सल्तनत में बहने वाली जिस नहर पर उसको बड़ा मान था, बड़ा घमंड था, उसी में अल्लाह ताला ने उसको गर्क कर दिया। बड़ा नाज था कारून को अपनी दौलत पर, क्या किया अल्लाह ताला ने, पूरी दौलत के साथ उसको जमीन में धंसा दिया। शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी, बन के तैयार हो चुकी थी, उसको देख नहीं पाया, अल्लाह ने वहीं पर उसको गेट पर इसका खात्मा कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि ना ताकत, ना हुकूमत, ना सल्तनत, ना दबदबा, किसी चीज का कोई भी रोक चलने वाला नहीं है। जब वक्त मुकर्ररा आ जाएगा तो फिर क्या 100 बरस, क्या एक दिन, सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह की ताकत के आगे किसी की ताकत चलने वाली नहीं है। तो इसलिए इस दुनिया को टारगेट ना बनाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आला में फरमाता है, बल तुसिरूनल हयात दुनिया, तुम इस दुनिया को चुनते हो, तुम्हारा टारगेट ये दुनिया है, तुम्हारा गोल इस दुनिया को अचीव करना है, तुम्हारा मकसद इसको पाना है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, लेकिन मेरा नजरिया तो कुछ और है, मेरी तलब कुछ और है, मेरी मांग कुछ और है। दौड़ो दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ, दौड़ो अल्लाह के सामान की तरफ, दौड़ो अल्लाह के दीन के लिए। अल्लाह की सदा तो ये है, उस पर हमें लब्बैक कहना है। हमारा वक्त, हमारी मसरूफियात, हमारी एनर्जियाँ फजूल कामों में ज़ाय हो रही है, वेस्ट हो रही है। सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा किराम सहाबियात की जो ज़िंदगियाँ थी, जो एनर्जियाँ, उनकी ताकतें थी, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त थी, कुर्बान कर दी उन्होंने अपनी ताकतें, कुर्बान कर दी उन्होंने अपनी जवानी। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नई नई शादी हुई थी ना, नई नई शादी थी, शादी की पहली रात थी, शादी की पहली रात में बीवी से मिले, सुबह होते ही साथ जंग का ऐलान हो जाता है, बिना गुस्ले जनाबत के जंग में पहुंच जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। वहाँ पर फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। अम्मा सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा कैसे कुर्बान की उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस दिन के लिए। एक कलमे को बस इनकार नहीं किया, अल्लाह अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, इसी का नारा लगाते रहे। अबू जहल की बात को नहीं माना और अपने आप को शर्मनाक तरीके से शहीद करना गवारा कर लिया। शौहर और जवान बेटे के सामने बरहना करा था अबू जहल ने उनको, और किस तरह से उनके दोनों हाथों, दोनों पैरों को बांध के दो अलग अलग सिमतों में ऊँटों को हुक्म दिया था और चीर दिया गया था, लेकिन उनके मुंह से मुस्कुराहट को नहीं छीन सका था। कुर्बान की उन्होंने अपनी जिंदगी इस दीन के लिए, अल्लाह के लिए, अपनी एनर्जी को उन्होंने कुर्बान किया। हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम किस लेवल पर हैं, हमारा मकसद क्या है, हम किसको खुश कर रहे हैं, हम किसको पाने की चाहत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखो इन सारी चीज़ों की एक वजह है कि हमारे अंदर आखिरत की फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला कहता है, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो जन्नत उसका ठिकाना हो गया। इसी चीज़ को हमको फॉलो करना है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और क्या कह रहे हैं, ऐनल बिलाल, ऐनल बिलाल, बिलाल कहाँ है, बिलाल कहाँ है। हज़रत बिलाल हज़रत उनके कानों में आवाज़ गूंजती है, कहते हैं लब्बैक व सादैक या रसूलल्लाह, हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ, मौजूद हूँ यहाँ पर, कहिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, मुझे बताओ कि मुझे जन्नत दिखाई गई, फरिश्ते मुझे जन्नत दिखा रहे थे, तो मैंने अपने आगे तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुनी थी। क्या अमल है तुम्हारा, मुझे उससे बाखबर करो। फरिश्ते जब मुझे जन्नत दिखा रहे थे तो मैं अपने आगे तुम्हारे जूतों के चलने की आवाज़ सुन रहा था। गोया इस हदीस में अल्लाह ताला ने हज़रत बिलाल की जन्नत की बशारत दे दी, क्या कि बिलाल को मैं जन्नत में जगह दूँगा।
تو حضرت بلال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اپنے عمل سے باخبر کرو، کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی الگ عمل میں نہیں کرتا ہوں، جو سب صحابہ کرام کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں، ہاں ایک چیز ہے جو میں اور لوگوں میں نہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا عمل ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر وضو کے کبھی بھی نہیں رہتا ہوں، میں ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں، یہی ایک عمل ہے جو میرا سب سے الگ ہے، میں اور لوگوں میں اس عمل کو نہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ عالم اللہ کو کون سا عمل میرا پسند ہے، لیکن یہی ایک عمل ہے جو سب سے مختلف ہے، سب سے الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حالات کس طرح سے ہیں، ہماری صفائی پاکی کا کیا خیال ہے، کس لیول کا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ حاسب قبل ان تحاسب، ہمیں حساب لینا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے، اللہ ہمارا حساب لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ ما ندمت علی شیء ندم علی یوم غربت شمسہ، کہ مجھے اس دن سے زیادہ افسوس کسی دن پر نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن گزر جاتا ہے ولم ونقص من اجلی ولم یزد فی عملی، کہ میرا ایک دن گزر جاتا ہے اور میرا اس میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، ایسا جو دن گزر جاتا ہے تو مجھے اس دن پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ وہ کیا کہتے تھے؟ کل یوم تشرق فیہ الشمس فیقول، ہر دن جب سورج نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، انا یوم جدید، میں نیا دن ہوں، وعلی عملی کا شہید، اور میں تیری عمل پہ حجت ہوں۔ اگر آج تو نے مجھے نیکی کے کام میں آج کے دن کو گزارا تو میں تیرے لیے حجت ہوں گا رب کی بارگاہ میں، اور اگر تو نے اس دن کو بغیر نیکیوں کے بغیر عبادت کے گزار دیا تو میں تیرے خلاف حجت ہوں گا۔ فَإِنْ إِنْ ذَهَبْتُ، اگر میں لوٹ گیا، لم یعود الی یوم القیامہ، تو آج کا دن جو میں لوٹ گیا، آج جو سورج ڈوب گیا، قیامت تک وہ پلٹنے والا نہیں ہے، جو دن آج گزر گیا وہ قیامت تک لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اس گزرتے ہوئے ماہ و سال کو نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ ہمارے ان بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ جو چیز ہم کو غور کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بے خوفی ہمارے اندر آ چکی ہے، ہم بے خوف ہو گئے، ہمارے اندر آخرت کی کوئی بھی فکر نہیں، فکر آخرت ہم سے ختم ہو چکی ہے، جنت کی تڑپ ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ سب سے بنیادی وجہ صرف ایک ہے، بے خوفی، اللہ سے بے خوف ہیں۔ یہ بے خوفی ہے جو نئے نئے جشن منانے پر ابھار رہی ہے ہم کو۔ اگر اللہ کا خوف ہمارے اندر آتا تو ہم اس طرح کے فضول جشن میں ملوث نہیں ہوتے۔ آج آخرت سے بے خوفی ہے، موت سے بے خوفی، آخرت سے دور ہیں، قبر کے عذاب سے بے خبر ہیں ہم لوگ کہ کیا عذاب ہوگا، محشر کی رسوائیوں کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ جس طرح سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ دوڑتے ہوئے لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس نا، کیا آپ اللہ سے ہماری سفارش کرو، آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، میں تو خود پریشان ہوں، میں نے درخت کا ایک پھل کھا لیا تھا، مجھے تو اسی بات کا ڈر ہے کہیں اسی پر میری پکڑ نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے میں نے زندگی میں ایک جھوٹ کہہ دیا تھا، میں تو خود پریشان ہوں، کیا پتہ اللہ اسی پر میری پکڑ نہ کر لے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کر دی تھی، مجھے تو اسی پر ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ میری نہ پکڑ کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک گھوسا مارا تھا، ایک آدمی مر گیا تھا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اس پر میری پکڑ نہ ہو جائے، نفسی نفسی۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تب اللہ کے رسول سجدے میں گریں گے، سفارش کریں گے، لیکن ہر کسی کا حال کیا ہوگا؟ نفسی نفسی۔ اور ہماری حالت دیکھو ہم کس طرح سے بے خوف ہیں۔ شراب کا سب سے زیادہ اس نائٹ میں شراب کا استعمال کیا جاتا ہے، شراب کا، اور اس میں ہمارے مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی بدمست ہوتی ہیں۔ وہ شراب جب حرام نہیں کی گئی تھی تو مدینہ کے ایک صحابی نے دعوت دی صحابہ کرام کو، چند صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ کھانے کا اہتمام کیا گیا، دسترخوان لگایا گیا، کھانا سب لوگ کھا رہے ہیں، کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، شراب پیش کی جاتی، چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پیش ہوئی، سب شراب پی رہے ہیں، شراب پینے کے بعد شراب پینے سے فارغ ہوتے، وہاں پر اذان کی آواز آنے لگتی ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب چونکہ شراب پی چکے تھے تو وہ جو صحابی جنہوں نے دعوت لی تھی سب کو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اب اس حالت میں مسجد تک نہیں جایا جائے گا، چٹائی بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے گھر میں
चटाई बिछाई जाती, एक सहाबी आगे बढ़ते नमाज के लिए, बाकी सब लोग पीछे सफ बना लेते। सफ बंदी हो गई, अब नमाज शुरू हुई। सबसे पहले सूर्य अल्लाहु अकबर कह के नियत बानी गई, सना पढ़ी गई, उसके बाद किरत शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के 7 आयतें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरह फातिहा की तिलावत खत्म होगी। अब जब तिलावत सूर्य की किरत करने जा रहे हैं तो कौन सी सूरह शुरू करें? कुल या अय्युहल काफिरून। सूरह काफिरून की तिलावत शुरू होने जा रही है। कुल या अय्युहल काफिरून क्या है? सूरह फातिहा तो अल्लाह अल्लाह करके सही से पढ़ दी। अब नशा जो है दिमाग पर, शराब का नशा दिमाग पर चढ़ने लगा। सूरह काफिरून की तिलावत शुरू हो रही है। कुल या अय्युहल काफिरून क्या तर्जुमा है? ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ए काफिरो ला अबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करूंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा उन माबूदों की जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनकी तुम परस्तिश करते हो, मैं उनकी परस्तिश करने वाला नहीं। इस आयत की तिलावत शुरू हो रही है। अब सहाबी गड़बड़ा गए। आयत क्या पढ़ रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम इबादत करते हैं उन माबूदों की जिनको तुम पूछते हो, हम पूछते हैं उन माबूदों को जिनको तुम पूछते हो। अल्लाह है ना। शराब का नशा दिमाग पर चढ़ गया, दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं है, हवास अपनी जगह पर नहीं है, बदहवास हो चुके हैं, नशे में दम मस्त हो चुके हैं। और आयत कुरान की क्या पढ़ रहे हैं? नहनु नअबुदु मा ताबुदून, हम इबादत करते हैं उस चीज की जिसकी तुम करते हो। नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह अकबर। कुरान की आयत को ही बदल दिया, माना ही बदल दिया। अल्लाह अल्लाह करके नमाज खत्म हो गई, सलाम करके इख्तिताम कर दिया गया। यहाँ नमाज खत्म हुई, वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आ जाती है। अल्लाह ताला आयत नाजिल करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात, ऐ ईमान वालों, रोक दिया अल्लाह ताला ने। कुरान की इस तरह से जाती हुई है, बेहुरमती हुई है, इस तरह कुरान के माने को गलत पढ़ा गया। अल्लाह ताला ने कहा ला तक़रबुस सलात, तुम नमाज के करीब ना जाओ, अंतुम सुकारा, हालांकि जब तुम नशे की हालत में हो। अब नशे की हालत में तुमको नमाज नहीं पढ़ना है, दूर रहना है। कब तक? हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जब तक तुमको मालूम ना हो जाए, तुमको इल्म ना हो जाए, तुम्हारे होश ठिकाने पर ना आ जाए, तुम्हारी अकल अपनी जगह पर ना आ जाए, तुमको पता ना चल जाए मा तक़ूलून कि तुम क्या कह रहे हो। जब तक तुमको होश नहीं होगा तब तक तुमको नमाज अल्लाह ताला ने रोका। यानी यहाँ पे भी शराब हराम नहीं हो रही है, रोका अल्लाह ताला ने कि शराब को कब पीना है? जब तुम नमाज नहीं पढ़ रहे। हाँ, नमाज पढ़ के भी पी रहे हो तो फिर दूसरी नमाज तब तक नहीं पढ़नी है जब तक तुम्हारे होश ठिकाने पर नहीं आ जा रहे हैं। अब जब ये आयत उतरी, सहाबा किराम की जिंदगी इस आयत ने बदल दी। सहाबा किराम कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह, हमारे लिए आयत नाज़िल हुई है, हम शराब के लिए नमाज को छोड़ दें? यानी जब तक शराब पिए तब तक हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, या तो नमाज के लिए शराब छोड़ दे। चूंकि आदत थी, एक लत थी, एक शौक था, शराब पीते थे अरब वाले, तो उन्होंने कहा या तो शराब के लिए नमाज को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता, और या तो नमाज के लिए शराब को छोड़ दें। आदत इंसान की जल्दी नहीं बदलती। तब उन लोगों ने कहा कि हजारों शराब कुर्बान, लेकिन हम नमाज कुर्बान नहीं करेंगे। अब ठीक है, नमाज का जब वक्त होगा तो हम शराब नहीं पिएंगे। अब जोहर की नमाज का वक्त होता है, शराब पीने का मूड बनता है, तो कहते हैं कि अब जोहर की नमाज का वक्त है, अभी शराब नहीं पीते, जो ही जोहर की नमाज खत्म होगी तब पिएंगे। नमाज से फारिग होते हैं, घर आते हैं, अब कहते हैं कि अब शराब पीते, तो कहते हैं खाने का वक्त है, खाना खा लेते हैं फिर शराब पिएंगे। चूंकि खाना खाते अरब में कैलूले का दस्तूर था, कैलूला किया जाता है, और चूंकि सुन्नत भी है, हमें भी करना चाहिए, तो जो ही खाना खाते हैं, कैलूला करते हैं, तो खाना खाने के बाद नींद अपने आप आने लगती है, शराब वहाँ भी रुक जाती है, सो जाते हैं, उठते हैं, कहते लाओ अब शराब पी लें, तो कहते हैं अब तो असर की नमाज का वक्त हो गया, अब कैसे शराब पिएंगे, फिर नमाज छूट जाएगी। इस तरह से बहुत से सहाबा किराम से शराब की आदत छूट गई। लेकिन एक मजलिस में, तकरीबन वो मगरिब का वक्त था या इशा का, सहाबा किराम मजलिस में दौर लगता, मजलिस में शराब का दौर चलने लगता है, शराब पीना सब शुरू करते हैं। तो शराब के नशे में अंसारी मुहाजिर को, मुहाजिर अंसार को गालियां देना, उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। मुहाजिर क्या कहते हैं? ए मदीने वालों,
तुम हमारे नौकर हो। ए अंसारियों, हम तुमसे अफजल हैं, हम तो मक्का के रहने वाले हैं, हम तो कुरैशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़ानदान में, हमारी कौम में, हमारे कबीले में मबूस किए गए, हम तुमसे आला हैं, हम तुमसे अफजल हैं। मुहाजिरों को जगा दी थी अंसारियों ने ना, लेकिन चूंकि अकल पर, दिमाग पर नशा चढ़ चुका है, अब एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे हैं कि हम तो तुमसे बेहतर है, कौम में, शर्फ में, खानदान में, कबीले में हम तुमसे बेहतर है। अब नसारा जवाब दे रहे हैं, अंसारी साहबी लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं, तुम हमसे बढ़कर हो, तुम हमसे बेहतर कैसे हो सकते हो, तुमको मक्का से निकाला गया, हमने तुमको घर दिया, तुम्हारे पास पहनने को कपड़ा नहीं था, हमने तुमको कपड़ा दिया, तुम भूखे थे, हमने तुमको खाना दिया, तुम हमसे भी बेहतर कैसे हो सकते हो। नसारा गुर्रा गए, क्या कहते हैं, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं, हमने तुमको पनाह दी, जगह दी, मस्कन दिया, कपड़ा दिया, रहने को, खाने को कपड़ा दिया, हत्ता की बीवियों को भी तकसीम कर दिया था उन्होंने, एक बीवी को तलाक दे दिया था कि मुहाजिर भाई उसको रख ले, शादी कर ले उससे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में जब ये झगड़े की आवाज़ पहुंचती, ये खबर पहुंचती, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन हाथ उठाते हैं कि अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है, यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा रह गया हूँ, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं आया था, अमीरी गरीबी के फ़र्क को मिटाने के लिए आया था, ज़ात पात के ख़त्म को मिटाने के लिए मैं आया था, ऊंच नीच के इम्तियाज़ को ख़त्म करने के लिए मैं आया था, हर एक को तक़वे के मेयार पर बरतर बनाने के लिए मैं आया था। और आज मेरे सहाबा इस तरह का कर रहे हैं, ए अल्लाह, शराब के बारे में तू कोई हुक्म नाजिल कर दे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। फ़ौरन अल्लाह के नबी ने दुआ की, वहाँ जिब्रील वही लेकर आते हैं, अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ए ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ और बुतों के थान, फाल के तीर और जुए के पासे सब के सब हराम है। रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, शैतान की गंदगी है, ये शैतान के अमल है। फज्तनिबूह, तुम बचो, अब रुक जाओ, तुमको अब नहीं करना है। कुरान का ये हुक्म नाजिल होता है, सहाबा किराम जिस हालत में शराब, जिस हालत में रखी हुई थी, जिस हालत में जो उसको लिया हुआ था, फौरन स्टॉप हो जाता है। जिसके घर में शराब मटके की शक्ल में थी, मटके के मटके पलट देते हैं। हदीस में आता है कि मदीना की गलियां शराब से बहने लगती हैं, जिनके मुंह में थी वो उगल देते हैं, कुल्ला कर देते हैं, जिनके हलक तक पहुंची थी वो उंगली डालकर तय कर देते हैं। शराब का हुक्म नाजिल होता है। ये दो चीज़ यहाँ पर पता चल रही है, एक तो शराब की हुर्मत, कि शराब जो आज पी जा रही वो हराम है, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। दूसरी चीज देखो, शराब के मटके, आदत मैंने बताई कि आदत नहीं बदलती, हुक्म नाजिल हुआ फज्तनिबूह, पहले अल्लाह ताला ने क्या कहा, ला तक़रबुस सलात, है ना, नमाज के करीब मत जाओ, कब तक, हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जब तक तुमको पता नहीं चल जाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा फज्तनिबूह रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतान की गंदगी, तुम इससे रुक जाओ, बच जाओ, फौरन रोक दिया। सहाबा किराम के अंदर किस तरह से अमल करने का जज्बा था, एक चीज, एक हुक्म मिला, फौरन उसको फॉलो कर दी। हमें ऐसा हदीस, इस वाक़ये को अपने पर फिट करना चाहिए, ऐसा अमल अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए, क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की ताकत तौफीक के बगैर कोई भी नेकी इंसान नहीं कर सकता, उसमें उसका खुद का कोई कमाल नहीं है। शराब हराम हो गई है, इसलिए शराब से बचना चाहिए। बेखौफी जिस तरह से आई हुई है हमारे अंदर, उसका मैं वाक़या बयान करूंगी कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अपने चंद साथियों के साथ जंगल में तशरीफ ले जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, तो जंगल से गुजरते हुए एक चरवाहे को देखते हैं कि एक चरवाहा पहाड़ियों के दामन में बकरियां चरा रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भूख लगती है, अपने साथियों को, उनके साथियों को भूख लगती है, दस्तरखान बिछाते हैं, खाना जब पेश किया जाता है तो वो जब उस चरवाहे को देखते हैं तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि उसको भी बुला दो। चरवाहे को बुलाया जाता है, वो आता है, तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। तो वो चरवाहा क्या कहता है कि मैं तो रोजे से हूँ। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा कि हाँ, इतनी सख्ती, इतनी सख्त गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, सुबह से शाम तक तो इस बकरियों को चराने का काम, यानी इसी सहरा में तुमको चलाना है, और तुम ये नफली रोजा रख रहे हो, तोड़ दो और ये आओ हमारे साथ, तुम खाना खा लो। तो वो कहते हैं कि देखो, ये फर्ज रोजा नहीं है, ठीक है, नफली रोजा है, लेकिन मैं बकरियां चराता रहता हूँ अपने मालिक की, और यही मेरा काम है, यही मेरा हुक्म, मेरे मालिक का हुक्म है, तो मुझे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का या कुरान पढ़ने का मौका
نہیں ملتا ہے. میں نفلی عبادت نہیں کر پاتا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے, اس لیے میں نفلی روزہ رکھتا ہوں. چونکہ میرے پاس نفلی عبادت کرنے کا وقت نہیں ہے, میں نماز مسجد میں جا کر نہیں پڑھ پاؤں گا, اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان روزوں کے ذریعے بھی بخش دے, چونکہ میں نفلی نمازیں نہیں پڑھ پاؤں گا. تو عبداللہ بن عمر وہ کہہ کر چلا جاتا ہے. عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے دین کی بات کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اللہ کے فرمان کی بات کر رہا ہے, اس کا امتحان لینا چاہیے, ہم لوگ اس کا امتحان لیتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کو بلاؤ, تو وہ واپس آتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود آتے ہیں, وہ چرواہا آتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا بات ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں روزے سے ہوں اور میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک کام کرو, میں ایک بکری تم سے خریدنا چاہتا ہوں. مستدرک حاکم کے الفاظ سے کہتے ہیں بِئْنِی شَاةً, مجھے ایک بکری تم بیچ دو, میں ایک بکری خریدنا چاہتا ہوں اور مجھے ایک بکری بیچ دو اور ہم لوگ اس کو بھونیں گے کھائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بکری میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہے اور اس کے حکم سے میں چلا رہا ہوں. تو عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں, دیکھو مالک سے جا کر کہہ دینا کہ بکریاں چرا رہا تھا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے چراتے چراتے بکریاں دوسری جگہ نکل جاتی ہیں, دور چلی جاتی ہے, کبھی کبھی کوئی چرا لیتا ہے. تو کوئی بھی بہانہ مالک سے اپنے تم کر دینا, مالک تم کو کچھ بھی نہیں کہے گا. تو اور کہہ دینا کہ ایک بکری, یا تو یہ کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا. تو وہ چرواہا کیا کہتا ہے کہ نہیں, یہ میرے مالک کی امانت ہے, میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا. تو عبداللہ بن عمر زور دے رہے, چونکہ ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, امتحان لے رہے, چیک کر رہے ہیں کہ ایمان کا کتنا پکا ہے, دیکھتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں اس طرح سے نہیں کر سکتا ہوں. زور دیتے ہیں کہ لاؤ بکری تو دو, ہم ذبح کریں گے, اس کو بھونیں گے اور اس کا گوشت تم کو بھی دیں گے, تم اسی بھنے ہوئے گوشت سے افطار کر لینا. جب وہ سنتا ہے چرواہا تو چلاتے ہوئے چیختے ہوئے بھاگتا ہے, آسمان کی طرف دیکھتا ہے, ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے این اللہ, این اللہ, تم ہو میں ہوں, مالک نہیں ہے, بہانہ تم نے سکھا دیا, بہانہ میں وہاں بتا دوں گا. این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, کوئی نہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ چرواہا دور تک بھاگتا ہوا جاتا ہے اور کہتا ہے این اللہ, اللہ کہاں, این اللہ. عبداللہ بن عمر یہ آواز سنتے اور کیا کہتے ہیں, جاتے ہیں پھر اپنے مطلب گھر پہ واپس آتے ہیں. دوسرے دن اس چرواہے کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں, اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری بکریاں مجھے خریدنی ہے اور وہ غلام بھی مجھے خریدنا ہے. وہ بکریوں کی قیمت بتاتا ہے, اس کے خریدتے ہیں, بکریوں کو غلام کو خریدتے ہیں اور اس غلام کو آزاد کرتے ہیں, وہ بکریاں اس کو تحفے میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں این اللہ, تمہاری اس جملے نے تم کو غلامی سے آزاد کیا ہے اور اسی طرح سے اللہ سے ڈرتے رہنا اور قیامت کے دن بھی تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے. اس طرح کا خوف ہوتا تھا صحابہ کرام کے اندر. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. تو صحابہ کرام ایک دم ہوش میں نہیں تھے, دوڑتے ہوئے گرتے پڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے جتنی استطاعت ہے ہم نماز پڑھیں, جو بھی عبادت کریں, لیکن اللہ سے کما حق کہو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. اللہ نے کہا ہم کیسے کر پائیں گے. ان کی یہ بے چینی, وہ کیفیت دیکھ کے اللہ تعالیٰ دوسری آیت نازل کرتا ہے یا اتقوا اللہ ما استطعتم, کہ جتنی طاقت ہے اتنا ڈرو, طاقت بھر ڈرو, جتنا تم بچ سکتے ہو, تمہارے اختیار میں ہے برائی سے بچنا, اتنا تم بچو. تو ہمیں بھی اسی طرح کی فکر, اسی طرح کا خوف اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں سمانا چاہیے اور ہر طرح کی خرافات بدعات سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے. اپنی زندگی کے اس وقت کو, شب و روز کو جو گزرنے برف کی طرح, ریت کی طرح, ان کو غنیمت جاننا ہے اور موت کے آنے سے پہلے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنا ہے. رونا ہے ہمیں اس دن پر جو دن نماز کے بغیر گزرتا ہے, رونا ہے اس دن پر جو دن قرآن کی تلاوت کے بغیر گزرتا ہے, رونا ہے اس دن پر جو دن اذکار کے بنا گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.